हो गए सर, वैसे तो जितने आपने कराए हैं सारे हो गए फिर तो। वेरी गुड। राइट। तो दिन में क्या क्या करती है, क्या रूटीन है? सुबह 7 से रात को सोने तक का रूटीन बताओ मुझे। इंग्लिश में बताने की कोशिश करो। ये ऐसे आता है ना माई सेल्फ का। सही गलत बोलो। When do you get up? इसका आंसर करो पहले। When do you wake up? I get up early in the morning 5 p.m. At 5 p.m. Right. a.m. Then what is the first work you do in the morning? What do you do at first? What do you do at first? First of all, what do you do? After getting up, you take tea. What do you do? हाँ जी सर। Then चलो हिंदी में बता पहले, फिर कल इंग्लिश में बताना सबने। मॉर्निंग टू इवनिंग कल सबने इंग्लिश में बताना है, आज हिंदी में बताओ। साहिल कैमरा ऑन करो। साहिल, मनीष, यस। चलो जल्दी, जब तक वो बच्चे आए। नहीं, चलिए कल सबको माई रूटीन इन अ डे, दिन में मेरा सारा रूटीन वो तैयार करके आना है। राइट। कॉपी पे चाहे लिख लेना अपने आप, और फिर मुझे यहाँ पे लेसन सुनाने से पहले बताना है। चलिए, लेट अस नाउ बिगिन विथ which lesson you were to prepare today? Sahil, what was the lesson you had to prepare? Name the lesson. Deep water. Deep water. Yes. Who is the author? Yes, Raj. William Douglas. William Douglas. Right. What is YMCA? What do you mean by YMCA, Manish? YMCA. Have you heard it? Suna hai? YMCA. What is the full form? Rajvinder. Young Men's Christian Association. Young Men's Christian Association. Young Men's Christian Association. Right. So who will begin? कौन सुनाएगा सबसे पहले? Raise your hand. Yes, Raj. हाँ जी सर। Okay. You recite long answer question. Douglas described a misadventure of boyhood days when he was about 10 or 11 years old. Douglas went to YMCA swimming pool. He was alone there. Just then a big boy came there. He was physically stronger than the author. He threw the author into the deep end of the water. Right. Good. The author was drowned. Very good. The author was drowned. William Douglas. Yes.
William Douglas. William Douglas went at once at the bottom of the water. Some people saved him. Right. This misadventure speaks about this moment has created a big fear in his mind. Right. Shabas. बस Very good. बस सर इतने किया, चलिए, और छोटे भी याद हैं? छोटे भी हैं कितने? 5? 5। हाँ, तो इसको आज पक्का करना है और इसी को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को लिख के और रेड पेन से चेक करके मुझे भेजना है। चलिए, ठीक है सर। बाकी बच्चों को ध्यान से सुनना है और फिर उसमें से गलतियां देखनी है, कौन सी प्रोनाउंसिएशन की या वर्ड की कौन सी गलती की है इसने। चलिए, कोई मिस्टेक थी रजविंदर? यशराज के शब्दों में कोई? क्या क्या नजर आया? कौन बोल रहा है? आपके घर बोल रहा है? रजविंदर के घर से बोल रहा है या और किसी के बैक साइड में? चलिए, आप सुनाओ अपना, ध्यान से सुनना सभी बच्चों को। मैं इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछूंगा जो रजविंदर सुनाएगी, ठीक है? हाँ, लॉन्ग। Douglas developed an aversion for water when he was only 3 or 4 years old. One day, his father took him to the California beach. They stood in the surf. Suddenly, a huge wave came and swept over him. He was knocked down. He developed an aversion for water. Then a boyhood misadventure changed that aversion into fear. One day, his father, he was 10 or 11 years old. He sat at the edge of the pool. A big boy came and threw him into the pool. He was nearly drowned in the pool. Now the fear of water seized him. And finally, he made up his mind to get rid of that fear. He engaged an instructor to teach him how to swim. He practiced swimming 1 hour daily for 5 days a week. The instructor put a perfect swimmer, but Douglas was not completely sure that the fear had left him. So he went to the lake Wentworth and dived off a dog at Trix Island. He swam for 2 hours across the lake. Only once did he feel afraid of water, but it fled soon and he swam on. Thus Douglas he conquered his fear of water. वेरी गुड, लेट अस क्लैप फॉर हर। सभी बच्चे क्लैप करेंगे रजविंदर के लिए। इसने एक वर्ड बोला है POOL, कैसे प्रोनाउंस करोगे यशराज? पूल। पूल। और इसने क्या बोला है? पुल। क्या बोलना है रजिंदर? पूल। पूल और POOL, पूल, PULL, पुल। पुल मीन्स टू ड्रॉ, खींचना, है ना? और पूल मीन्स तालाब। दोनों में फर्क है। एक वर्ड रजविंदर ने बोला अवर्जन। व्हाट डज अवर्जन मीन? शाहिल, अवर्जन का क्या मतलब है? He had developed aversion from water. What do you mean by aversion? aversion नहीं, aversion का मतलब रजविंदर आप बताओ। That aversion changed into fear. That aversion changed into fear. इसमें aversion यूज हो रहा ना, इससे पहले वाले सेंटेंस में भी यूज हो रहा था। He developed an aversion from water, isn't it? And that aversion changed into fear. Guess the meaning की guess करो।
that aversion changed into fear? Experience. No. चलिए शाबाश, गुड। साहिल आप अंदाजा लगाओ। नहीं, चलो रजविंदर आप बताओ। अवर्जन, डर है। अवर्जन, वो दैट अवर्जन चेंज इनटू फियर। डर में तो वो चेंज हो गया था, डर में क्या हुआ था, वो कन्वर्ट हो गया था बाद में धीरे धीरे। वो अवर्जन जो था वो किस में बदल गया, भय में बदल गया, डर में बदल गया, है ना। अवर्जन किससे किससे निकला वर्ड, अवॉइड से। ही अवॉइडेड, ही अवॉइडेड मी। तो अब लगाओ अंदाजा। ही अवॉइडेड वाटर, बोलो। जहाज आया, जहाज। उसने पानी से बचना, बचने की हैबिट, पानी से दूर रहना। अवर्जन का मतलब दूर रहना, बचना, परे रहना। अवर्जन मीन्स परे रहना। तो क्या किया उसने, पानी से पहले तो वो बचता था, दूर दूर रहता था, और जिससे आप बचते हो, दूर दूर रहते हो, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, डर बन जाता है, आप Fear. उससे डरने लग जाते हो। Isn't it? Same happened with विलियम डगलस। चलिए साहिल आप सुनाएं लॉन्ग आंसर। बाकी बच्चे म्यूट कर लें अपने को, आवाज नहीं आएगी फिर दूसरी, जब बात करेंगे तब ऑन करना। साहिल आप अनम्यूट करें, अपने को अनम्यूट कर लें। हाँ, ये हाँ आप चलो, यस ठीक है, बोलो। Douglas describe a misadventure of his boyhood days. One day when he was 10 or 11-year-old, Douglas went to the Amica swimming pool. He was alone there. Suddenly a big boy came there. Suddenly a big boy came there. Suddenly a big boy came there. He picked यस, व्हाट डिड दैट बिग बॉय डू, क्या किया उस बिग बॉय ने। Suddenly a big boy came there and picked up the author and threw him into the pool. यस, Drew him into the pool. He landed at the bottom of the pool. यस, पूल, Pool. यस, Pool. Douglas was greatly. Suddenly, was greatly afraid। short question याद करें। शॉर्ट किए हैं, हाँ जी। चलो शॉर्ट सुनाओ, पहला क्वेश्चन बोलो पहले, फिर आंसर बोलो। शॉर्ट का एक क्वेश्चन बोलो। व्हाट इज द क्वेश्चन। देखना पड़ेगा। हाँ देखो, देख के बोलो, क्वेश्चन देख लो फिर आंसर बिना देखे बोलो। What is the misadventure that William Douglas speak about? हाँ, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। ठीक है, अब सामने कैमरे की तरफ देखते हुए बोलो। When he was a boy, William Douglas went to the Amica swimming pool. Suddenly, a big boy came there. He picked up the author and threw him into the pool. William Douglas went at once to the bottom of the pool. He feared that he would be drowned. However, some people saved him. This is the misadventure. However, some people saved him. This is the Right. misadventure. गुड, चलिए हाँ जी, ईशिका आपके क्या तैयार है।
लॉन्ग आंसर रेडी है? नो, शॉर्ट आंसर? हाँ, सुना, क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर बताना उसका। पहले क्वेश्चन देख के पढ़ लो। एक सेकंड सर, मैं गाइड ले लूं, बुक हाँ। ले लूं, उसमें से क्वेश्चन देख। तो साहिल आज ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद करके उसको रफ कॉपी पे लिख के रेड पेन से चेक करके उसकी फोटो भेजनी है मुझे। पक्का कर ले इसको, और फिर कल के लिए तैयार करना है। क्या क्या काम दिया मैंने, किसने देखा व्हाट्सएप अभी? पोएम दिया सर सेकंड। हाँ, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, वो पूरी पोएम करनी है आज। ठीक है, ऐसे तैयारी करो पेपर की, अभी कभी भी हो सकते हैं पेपर, जनवरी में भी हो सकते हैं। चलिए मनीष, आप तैयार हैं? मनीष अपना कैमरा ऑन करो। बोलू सर क्वेश्चन? हाँ जी बोलो। व्हाट इज द क्या वहाँ नहीं रही क्लियरिटी, कैमरा ऑन करके। हाँ नहीं आ रही क्लियरिटी, आवाज ही सुननी है तुम्हें, क्या दिखेगी? आवाज ठीक आ रही है, बोलो। चलिए मनीष तैयार है? आप क्या लॉन्ग आंसर रेडी है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तैयार है? अनम्यूट करें पहले। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या सुनाओगे? सर लॉन्ग क्वेश्चन क्या था? आधा आधा याद किया सर लॉन्ग क्वेश्चन। चलो सुनाओ, आधा सुनाओ। हेलो, हाँ जी, यस बोलो, ठीक आ रही है आवाज, बढ़िया। Douglas described misadventure of his boyhood day. One day when he was 10 or 11-year-old, Douglas went to Yamsa swimming pool. He was सामने देख के, alone there. सामने देख के, कैमरे की तरफ देख के, सामने देखो, नीचे नहीं। छत पे बैठा सर। हाँ हाँ, छत पे सामने बैठा देख हूँ। सकता है, छत पे भी। फोन में देखो, सामने उस पे स्क्रीन पे। He was alone there and sat at the edge of suddenly a big boy came. Suddenly big boy came and threw him into the swimming pool. राइट। He landed at the bottom of the pool in despair. Uh, bottom of Douglas was greatly finishful, but still he had not lost as person of mind. He was going to ड्राउन, ड्राउन। drown. He was going to play to touch the bottom of the pool with his feet with his feet, but still he had not lost person of mind. He was go, going to place to touch the bottom of the pool with his feet and jump jump upward. He thought that he would come out of the water. He would turn swim on the surface of the water downward the edge of the pool. But it took long of bottoms with his feet and straight came up. But he was coming up very slowly. He was opened his eyes and nothing nothing but water. He was picked his word apparent to him as if he great force of the pulling him down. कौन है तेरे सर नहीं आसपास? आता, दिनेश है? कोई नहीं है सर। दिनेश नहीं नहीं है? सर, अच्छा, कॉलेज गया सर वो। कॉलेज गया। चलो जी। कल और अच्छे से कॉन्फिडेंस से सुनाना है,
पोएम का, Yes, ठीक sir. है? सामने देखते हुए, साफ दिखनी चाहिए, तेरी आंख नहीं दिख रही थी आज। चलिए सर यहाँ इशिका, बैठो सब मेरे। हाँ इशिका, रेडी सर नाउ? क्वेश्चन पढ़ रहे हो? हाँ जी। हम्म What is the misadventure that William Douglas speaks about? हम्म When he was a boy, William Douglas went to go in the YMCA swimming pool. हम्म YMCA swimming pool. He Right. was alone. Good. He was alone there. Yes. Just then a big boy. Just then a big boy Just came. then a big boy come Came. there. Came there. Came there Hmm. and THR. he was basically He was. basically strong than the other. कौन बैठा है? कौन बोल रहा है? ये क्या नाम, आकाश है? आकाश बोल रहा है? ऑन करो, माइक ऑन करो। अनम्यूट करो अपने को। कोई भी नहीं था। अभी था, आकाश था। अनम्यूट ही है सर। हाँ तो नहीं कौन है बोल, सर, ये देखो पीछे कौन बोल रहा था? ये पीछे बोल रहा था, कौन बोल रहा था? कोई भी नहीं है सर, कल ही। अच्छा तुमने सुना भी? यशराज सुना ना, कोई बोल रहा था? हाँ जी। हाँ बोल रहा था, आकाश ही होगा। आकाश कोई भी नहीं है सर, कल ही बैठे। नहीं वो तो आवाज गया आ रहा था है। सर। चलो, तो आवाज कहाँ से आ रही थी? वो तो गया है सर जॉब पे। अच्छा, क्या जॉब करता है? तब कोई है ही नहीं सर, आपको भी लेकर लगा होगा। जॉब क्या करता है आकाश? वो सर इधर ही। पढ़ाई नहीं कर रहा हाँ आगे? जी करता है। आगे पढ़ाई नहीं कर रहा है? नहीं वो कंप्यूटर सेंटर भी जाता है, नहीं कर रहा है सर कॉलेज में। ओके, चलिए अब मैं पूछूंगा हाँ जी। 5 छोटे क्वेश्चन एक एक से। सबसे पहले साहिल की बारी है। 5 में से कितने नंबर आएंगे वो देखना है। Who held the narrator? Blue water, yellow water, green water, red water? ब्लू वाटर। ब्लू वाटर। चलो ठीक, बताओ आंसर क्या है रजविंदर? Who held the narrator? उसके चारों तरफ पानी कैसा था? ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड? सर येलो था। येलो वाटर। तो काउंट करना है कितने नंबर आए इसके। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ द ऑथर? स्ट्रॉन्ग, ट्रेम्बल, लिम्प, all of these? What happened to the leg of the author? legs के साथ क्या हाल हुआ? स्ट्रॉन्ग हो गई, ट्रेम्बल, लिम्प और all of these? ट्रैम्बल। ट्रेम्बल। क्या होना चाहिए भाई? बाकी सब बोल सकते हैं। यशराज? स्ट्रॉन्ग। डर के मारे क्या हो जाती है टांगे? कट जाती है। टांगे उसकी कैसी हो गई थी? स्टोरी पढ़ी तुमने डगलस की? बिल्कुल जान निकल गई थी उनकी, टांगों की जान। उसके लिए क्या वर्ड है? लिम्प। क्या हुआ? लिम्प। चलिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर सक इन द वाटर? व्हाट डिड ही सक? हैंड, लेग, एयर और हेड? सर हिंदी। पानी से जब मुंह निकला उसका,
इंग्लिश में समझ में आना चाहिए। जब बाहर निकला वो पानी से, हेड सिर बाहर आया तो क्या शक किया उसने? क्या गया? हैंड, लेग, एयर, हेड। साफ है इसमें। डूबते डूबते एक बार सिर बाहर निकला पानी से, तो व्हाट डिड ही शक? क्या शक किया उसने? हैंड, लेग, एयर, हेड। Air. एयर, गुड। हवा पी गया वो। हाउ डिड ही गो टू हिज होम? हाउ डिड ही गो टू हिज होम? इन ए कार, इन ए बस, बाय वॉकिंग और ऑन बाइक? Sir, Hindi. एक एक शब्द की हिंदी बतानी पड़ेगी, अपने आप समझो। हाउ डिड ही गो Question. टू होम आफ्टर बीइंग ऑलमोस्ट ड्राउन्ड? हाउ डिड ही गो टू होम? इन ए कार, इन ए बस, बाय वॉकिंग और ऑन बाइक? घर कैसे गया वो अपने वहां से, पूल से? कार में गया, बाइक पे, वॉकिंग से, या बाइक उस पे, बस में? नहीं, कार से गए। स्टोरी नहीं पढ़ी इन्होंने। किससे गया भाई यशराज? बस में। बस में। गलत दोनों। लेसन नहीं पढ़ा तुमने, स्टोरी नहीं पढ़ी। बाय वॉकिंग। What did the author see underwater? What did the author see underwater? Pearl, bottomless water, fishes, none of the above. None of the above. None of the above. Wrong. Bottomless water. क्या था? बॉटमलेस वाटर। Bottomless water. तो इसके तो एमसीक्यू भी भेजे थे कई बार, वो भी नहीं किए तुमने। चलिए रजविंदर, did the jump make difference? जब नीचे से ऊपर की ओर उसने जंप लगाया, क्या उससे कोई फर्क पड़ा? Yes, no, perhaps? No, sir. No. Good. Where was the water? Around the narrator, Around the net. around the table, around the gate, all of these. Around Around the the narrator. Very good. Who threw the writer into the water? Instructor. The big boy. Instructor, इसमें से बताना है। Instructor, mother, father, chap. Okay. Chap, mother, father या instructor? ये चार ऑप्शन है। A chap, mother, father and instructor. बॉय को क्या कहते हैं लोकल इंग्लिश में? चैप। चैप, अ चैप, अ लैड, अ बॉय। ठीक है, कितने हो गए? तीन क्वेश्चन हो गए। What happened to the legs of the author? रिपीट हो गया क्वेश्चन, बिना ऑप्शन के बताओ। What happened to the legs of the author? Panic. Strong, tremble, Limp. limp. Right. Strong, tremble and limp. Last question. What was not moving? Arms, legs, both, none. What was not moving of Douglas? Arms, legs, both or none of these? पानी में what was not moving? कुछ भी नहीं हिल रहा था उसका। क्या नहीं हिल रहा था?
हाथ पैर दोनों या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं होगा। बोथ ए नहीं एंड होता बी, था वो। लेकिन डाउटफुल थे आप, इसलिए 3 नंबर आए, 3 out of 5. Yes, Raj. What did the author see underwater? Again, repeat question. Pearl, The bottomless water, fishes. bottomless water. Bottomless water, right, 1. On which lake did the author go? Wentworth Lake, White. Kern Lake, Sabarmati Lake, Sona Lake. लेक का नाम बताओ। वेंटवर्थ, करण, साबरमती, सोना। Wentworth Lake. Wentworth Lake, good. What did the writer cross? Curtain of happiness, curtain of water, curtain of sadness, curtain of death. Curtain of sad. Curtain of sadness, curtain of death, curtain of happiness. Curtain of sadness. No, curtain of death. किससे गुजरा था वो? That's it. Death से. Right. Now, why was the writer lying on his stomach? पेट के बल लेटा था. In order to take rest, in order to sleep, both या none? In order to take rest. In order to take rest. Rest. Right. Last question. What had happened to the writer? Drowned, unconscious, both or neither? Drowned, unconscious, both, neither. Drowned. Drowned and unconscious. Unconscious भी हो गया था. Unconscious हो गया था, कैसे पता चलता है? डर गया था वो. कैसे पता चलता है? डर से तो नहीं पता चला कि जब उसे होश आया वो बाहर था, पेट के बल लेटा हुआ था, लोग चारों तरफ उसके खड़े हुए थे और उस बड़े लड़के को डांट रहे थे. That big boy was being reprimanded, rebuked. बड़े लड़के को लोग डांट रहे थे. ठीक है, तो ऐसे अच्छे से तैयार करके आना है और बाकी बच्चों को भी बताना है, ऐसे करेंगे, तैयारी कर रहे हैं पेपर की. कल क्या करना है? An elementary school classroom in a slum. वो तैयार करके आना है और इसको रिवाइज कर लेना है. ठीक है, ओके, गुड डे.